આજના દિવસે વ્રત આવ્યું છે, તો ટ્રસ્ટ તરફથી પણ હું આપ બધાને એ પ્રતિષ્ઠામાં આવવાનું આમંત્રણ આપું છું. આપ જરૂર શ્રી સાંકૃતિક મિત્રો સાથે વધારજો. આ વાત તો કોંકણ દેશ પીપલ આચાર્ય રત્નાકર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ વિજય ઇન્દ્રદીપસુરી માસ્ટરનું કાલ ભૂમિ અંબાલા થઈ એક મહાન શાસક પ્રભાવક ઇન્દ્રદીપસુરી મહારાજ સાહેબ જેને પૂર્ણ પરમાર ક્ષત્રિય જાતિને જૈન બનાવ્યા. એ કહે છે ને મહાપુરુષોનો સુવાસ વ્યક્તિથી તો હોય જ છે, એના પછી પણ શાસન માટે એ એવું કામ અર્પિત કરી ગયા, સોંપી ગયા. એમના શિષ્ય રત્નાકર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબે એક પ્રણ લીધો કે સાહેબની કાલચક્ર ભૂમિ પર એક શિવ મંદિર અને ગુરુ મંદિરનું નિર્માણ થાય. સમય આસપાસ કંઈ એવું થઈ ગયું કે રત્નાકર સુરી મહારાજ સાહેબનો વંચાણ મુકામે કાલ ધર્મ એક્સિડન્ટમાં થઈ ગયો. એ પછી એમનું જે સ્વપ્ન હતું કે જે મારે ક્ષત્રિય ગુરુધારા આચાર્યોને સ્થાપિત કરવા છે, એ જ એમની થીમ, એ જ એમનું થોટ પ્રોસેસ ગુરુદેવ આગળ વધાર્યો. અને ત્યાં 108 શાસક પ્રભાવ હતો. કદાચ આપણને આગળ નામ પણ કદાચ ખબર નહીં હોય એવા શાસક પ્રભાવ 500, 800, 1000, 5,000 વર્ષ જૂના પૂર્વાચાર્યો જેનો ઇતિહાસ પણ બહુ દુર્લભ છે. એવા પૂર્વાચાર્યનો ઇતિહાસ જૂના ગ્રંથોમાંથી, જૂના પુસ્તકોમાંથી અને આવી રીતે એકબીજા મહાત્માના સમન્વયથી એ બધા ઇતિહાસ ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યો છે. ફોટા તો આપણને કોઈના પણ નહીં જોવા મળશે, કદાચ એક મહાપુરુષોના ફોટા મળશે આપણને. તો જેવા ગ્રંથોમાં વર્ણન છે એવા ફોટાઓ ચિત્રકારને બેસાડીને સામે બોલે મહેનત કરીને એવી મૂર્તિઓ 108 ભાષાની મૂર્તિઓ ત્યાં સ્થાપિત થશે. જે મંદિરમાં ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ વિરાજમાન છે એ પુનઃસ્થાપિત થશે. ત્યાં 6 નવા ચિંતિત વિરાજમાન થશે અને 108 કહેવા જાય. 84 ગજમાં બધા જ ગજમાં સમાવેશ કરવાનો એક આપણી પુસ્તિકા છે, એમાં નામ પણ આપણે આપ્યા છે. સાથે ત્યાં આચાર્યના 36 ગુણ, 36 પટની પણ સરસમાં ત્યાં કરવામાં આવી રહી છે. અને એ ભારતમાં કોટરની એની પાછળ આપણે પ્રતિક્રમણમાં કાલે વિનય ગોપને જે અતિચાર આવે છે, તો જે આચાર્યના ગુણ છે કાલ વિનય, એ કાલ ઉપર એની કહાનીમાં ચૂકવે એનું પરિવાર કોટલા છે. અને આખી કહાની આપણને ડિજિટલી પણ આપણને ત્યાં સાંભળવાને જોવા મળશે. ચતુર્વિધ સંઘના 4 પાયા સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા તો આ જૈન શાસક મંદિર જ છે, જ્યાં પરમાત્મા તો છે જ, ગણધર ભગવત છે, શુદ્ધ કેવલી છે. એવા 108 પૂર્વાચાર્ય પણ છે. ત્યાં જૈન શાસનની એવી સાધ્વીઓ પણ સ્થાપના કરવામાં આવશે. અને એવા શ્રાવક જે રાજાઓ હતા એમનું પણ ત્યાં એ તીર્થમાં સમાવેશ કરવામાં આવશે. પહેલાં ચાલે 108 શાસક પ્રભાવ એમની પ્રતિષ્ઠા, એના અંગેનું કામ બહુ ઝડપીમાં ચાલી રહ્યું છે. ભારતભરના વિવિધ સંઘોમાંથી બહુ ઉદાહરણના ભક્તો તરફથી સહયોગ મળી રહ્યો છે. જીવનદાસ ગોવિંદાસ પેઢી હોય, કલ્યાણની પેઢી હોય, જીરાવાલા પેઢી હોય કે મુંબઈના વિવિધ સંઘ બોડીજી, વાગેશ્વર, ગોવાલિયા, પંકલા, ગોળવા દસવાન સંઘ બધાની જ આમાં ભૂમિકા રહી છે. અને પ્રોજેક્ટ ઘણો મોટો છે. હજુ આપણે અડધે પહોંચ્યા છીએ અને આગળ પણ દેવગુરુની કૃપાથી અને આ બધાના સાથ સહકારથી પૂરો થઈ જ જશે. મુંબઈ જૈન સંગઠન જીતિનભાઈ એ પણ બહુ પોતે વિઝિટ કરી આવ્યા છે. વિલેપાલના સંઘના અધ્યક્ષ હતા પ્રવીણભાઈ, પિયુષભાઈ વાઘેલા, એ પણ બધા ત્યાં વિઝિટ કરી આવ્યા છે. અનેક સંઘો રોજ આવી રહ્યા છે. ત્યાં ઓલરેડી ધર્મશાળા, સાધુ ઉપાશ્રય બધું ઓલરેડી સુચારું ચાલી રહ્યું છે. બધા સંઘો આવા પણ ચાલુ છે. આપ જરૂર નોંધ તરફ આવો તો આપ જરૂર વધારજો. અહીંયા વોકરૂમમાં આ નિર્માણ થયેલા વિલેપાલા સાહેબથી આવેલા મસ્જિદો નિર્માણ કરી જોઈ રહ્યા છે. મુંબઈ સંગઠનથી જીતીભાઈ એમની મારી એ રીતે વિવિધ સંઘો આવી રહ્યા છે. અલગ અલગ અને આખું ગુરુદેવ પોતે આદમ સંશોધક
આ નૈદાના આ ચિત્ર છે જે કરંટ પોઝિશન છે તિરંગની લગભગ 60-65% જેટલું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આપણા પાટણમાં 108 અલગ અલગ મુદ્રાઓમાં જે મૂર્તિઓ બની રહી છે એનું કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. ટોટલ 108માં એક પણ તમને રિપીટ નહીં મળશે. અલગ અલગ મુદ્રાઓ અલગ અલગ જ્યાં પણ શાસ્ત્રમાં થોડું પણ વર્ણન મળે છે એ મૂર્તિઓમાં સમાવેશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. આપણું મેઇન થીમ મંદિર એલિવેશન આનું લેઆઉટ પ્લાન અને આ નીચે તમે સાઈડમાં અહીંયા જોવો છો આ લગભગ 400 રનિંગ ફૂટમાં ત્રિશસ્તી સલાકા પુરુષમાં કે પરમાત્માનો એક વર્ણન આવે છે કેવળ જ્ઞાનનો એ આખો ને આખો આમાં કોતરણીમાં લગભગ 9 ઇંચ ડીપ કોતરણી માર્બલ ત્યાં મૂકીને જ ઓડિશાના કારીગરે કામ કર્યું છે. એ આખું કામ પણ ત્યાં પૂરું થયું છે. આ બધું જે રીતે સંગીત પ્રોગ્રામ પર જરા કે પહેલા વિચાર કાળ વિનય બહુમાં આની આખી કહાની ત્યાં કોતરી લગભગ 9 ઇંચ ડીપ ઓડિશાના કારીગરો દ્વારા કોતરી થવાની છે. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનના 21 જેટલા જૂના તીર્થ શંકેશ્વર હોય જીરાવલા હોય એ તીર્થની ઉદ્ભવ થતા એ તીર્થ કેમ બન્યું એના પાછળનું કારણ ઇતિહાસ આપણે નોર્મલ પટ જોઈએ તો કશે ખાલી ફક્ત મંદિરનો ચિત્રિત કરેલો આપણને પટ મળશે. આ તો એના પાછળની સ્ટોરી કે જરાસંઘ જોડે યુદ્ધ કર્યું એ આખી આ કોતરીત થયેલી આમાં આ લગભગ 21 ઇંચ ડીપ જેટલી કોતરણી થશે. આખા તીર્થનું આમાં પૂરો ઇતિહાસ એ કહેવાય ને ગાગરમાં સાગર સાગરમાં ગાગર એવી રીતે જ સાહેબે બહુ પોતા જોડે પોતે બેસીને કેવી રીતે એને સમાવેશ કરી શકે એવું રીતના પટનું કામ ત્યાં ચાલી રહ્યું છે. આમાં પણ QR કોડ ત્યાં મૂકશું સાથે એનો ઇતિહાસ ડાઉન કરે અને નીચે બધે ઉભી ત્યાં સમસ્યા એવી રીતે 21 પટ ટ્રાફિક પટ
જાગૃત અને અધિષ્ઠાય છે એવા અગ્રણીઓને કોઈ જણાવ કરશું, કારણ કે પ્રતિષ્ઠા શિક્ષણ સમાજ આપણી પાસે ચિંતામણી ભેટ અંગે જગતચંદ્ર ભેગા મળીને ગુરુદેવની જાગૃતિ ઉગાડી અને એવી રીતેના વાતની રજૂઆત કરી પ્રતિમંડળ દ્વારા જો પ્રવીણભાઈ સાહેબ ખેડૂતભાઈ મયુરભાઈ ગુરુદાસ વગેરે તત્કાળ સર્વે કરવા માટે અંબાલાથી ગયા. આ જાગૃતિ ખરેખર દરેક ઘરમાં જો આવી જાય તો ચીન શાસનના કોઈ પણ પ્રશ્નો અટકે નહીં, પરંતુ એ પૂર્વ ભૂમિકા બાંધવી પડે. જો આ પ્રોજેક્ટનો પરિચય કરવો તો આ રચનાકારના જે રચનાકાર છે એવા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનો પરિચય બહુ જલ્દી છે, કારણ કે 50 વર્ષ સુધી રહ્યા છે. તો એમના કરતાં પણ આપણે જેમ કહીએ કે આપણામાં કહેવત છે, બાપ જેવા બેટા અને વડ જેવા ટેટા. બાપ કરતા બેટા સવાયા હોય અથવા મૂળના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે એવા પરમ પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય દેવ ધર્મગ્રંથ શ્રીજી મહારાજા એ વલ્લભ શ્રીજી મહારાજની પાઠ ઉપર એમના શિષ્ય પ્રશિષ્ય જે કહો એ વલ્લભ શ્રીજી મહારાજનો પરિચય આપવાની જરૂર નથી. જેમના હસ્તક રચિત 14 મહાવિદ્યાલયો જેમની પ્રેરણાથી કર્યા અને આજે આપણે જોયું કે પ્રોપર્ટી થઈ ગઈ. આ મહાપુરુષોની 1400 વર્ષ પહેલાં विजन घटक उनकी जो दृष्टि होती है वो सारी सृष्टि का निर्माण करती थी. ऐसे वल्लभ सरस्वती महाराज के चरणों में कोटि दर्शन करने के बाद उनके शिष्य सरस्वती रत्नाकर सरस्वती आदि महापुरुषों की प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण होने जा रहा है. उसके लिए एक ही बात कहूँगा कि जब तक खुद नहीं जाते, खुद नहीं देखते, खुद सर्वे नहीं करते, कोई चीज का पता नहीं चलता. जो दिखता है वो ही दिखता है. तो हमने इस सुश्रावकों ने सुश्रावक आदमी तब बन सकते हैं जब जितना भी वो बड़ा बने उतना ही उनके अंदर विनम्रता आए. वैसे नेपाल में देख सकते हैं टावर जैसे हुआ जगह निर्माण कर दिया, वे दीवारों ने बहुत अच्छे में अच्छा भाषण को निर्माण कर दिया. लेकिन उनकी ये संघों की जो विनम्रता है वो इतनी जबरदस्त है. कोई भी गुरु गोविंद ने आह्वान किया अच्छे कार्य के लिए तो उस कार्य को तत्काल हमें व्यवहार से उसका सर्वे करना चाहिए. और एक नेपाल में संगीत ट्रस्टीगण वहाँ गए. वैसे ही पंजाब में श्री वल्लभ सरस्वती महाराज के इस समुदाय के समर्पित अनेक ट्रस्टियाँ उपस्थित है. जैसे हमारे कनकवादी जिला बाजार से आप बता रहे जो पूर्वा महासंघ के अध्यक्ष हैं, तो हमें कहने दो कि जब तक हम कुछ जाकर देखते नहीं है जो वेद वाले जगह जहाँ बता रहे हैं कल उससे भी हमारी बात हुई कि बयान वहाँ जाके देखते आए. क्यों कि मुंबई से बड़े 3 संघों में जिन संघ का नाम आ रहा है वो मेरी बात है. आशा और अपेक्षा के भी ऊपर एक कार्य एक निर्माण इतना अच्छा अद्भुत है कि जब हमने नवजीवन जैन संघ की तरफ से वहाँ जाके सर्वे किया, हमारा सारा ट्रस्टीगण वहाँ पे था, तो हमने ये बताया गुरुदेव कि आज हमारी परिस्थिति कि हम आपको 1 पैसे का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके. लेकिन फिर भी हमारे ट्रस्टीगण ने बताया कि भाई जैसे ही हमारा रिजर्वेशन का प्रोजेक्ट सरफेस पे आ जाएगा काबर तो कम से कम 1 करोड़ 11 लाख की राशि आपको बिल्कुल प्रदान करेंगे. ऐसे हमने मैंने नहीं कहा लेकिन हमारे संघ के ट्रस्टियों ने कहा. तो ऐसे जब हमारे मधुबी जैसे छोटे नवजीवन संघ भी ऐसा अब कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है तो मेरे बात है. और ये वे संत सारे भगवत की नाम है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी योजना रद्द की गई है उस योजना के अंदर आप अच्छे में अच्छा लाभ लें, क्योंकि आप दोनों संघ की जोड़ी है, आपका संघ आपकी एकता वो आपकी शक्ति अद्भुत है. क्यों पिछले 8-10 महीने जितने भी प्रोग्राम हुए मुंबई संगठन के या वेस्ट लाइन के सारे
वजह सुधारता की वजह से भरोसा जब रखना है जैसे भी रखना है सारा लाभ हमें दीजिए। तो ये उदारता कभी बचिए जिसके बल स्वरूप आज हम सब यहाँ पर मौजूद है। सारे गोरेगांव से लेकर भाजपा तक विकल्प शानदार सभी व्यक्तियों को यहाँ आज हमने उनकी उपस्थिति में आमंत्रण दिया हुआ है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं कहेगा करूँगा, इनकी तो हमने बात की लेकिन कलाकारी करती, इनकी जो कमाने देखी, इनका जो रंग मंडल देखा, और सबसे बड़ा जो हमने अच्छा काम किया आज तक हमारे गुरुओं के मंदिर बनाए हैं। हमने हमारे गुरुओं के मंदिर बनाया, करूँगा याद रखना। आपने आपके गुरु का बनाया, मैंने मेरे गुरु का बनाया, बहुत अच्छी बात है। गुरुओं सब विद्वान है और आज के जमाने को आगे लेके चलने वाले आप मुझे बनना ही चाहिए। लेकिन हमारी एक शरत भूतकाल में हो चुकी है कि जो गौतम स्वामी जी, सुधर्मा स्वामी जी, 4 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, 2 पूर्वधर, ऐसे अनेक महापुरुषों का एक भी गुरु मंदिर आज हमारे उपस्थिति में सारे भारत में नहीं है। अगर है तो चित्तौड़गढ़ में हरिभद्र सिंह का झोपड़ी जैसा टूटा फूटा गुरु मंदिर है, वो हमें सरवा चाहिए। गुरुदेव हमारा सर सबसे डूब जाता है जब हमने देखा महाराज इनके कारण आज हमारे सारे संगठन मौजूद है, उनका अस्तित्व है और उसके भी आगे महाराज उनका भी एक छोटा सा है गुजरात के अंदर। तो ये हमारे लिए करूँगा दया की बात है। इस भूल को सुधारने के लिए गुरुदेव ने अपनी आगेवानी दिए, उनको मैं सच सच प्रणाम करता हूँ और मैं आप सबको विनती करता हूँ कि जब ऐसा कोई इतिहास को छोड़ के वर्तमान के अंदर जीने के लिए भविष्य की प्रजा को एक इंस्पिरेशन मिले, एक प्रेरणा मिले, उस प्रेरणा को जबरदस्त बल मिले। जैसे गुरुदेव ने अपनी कारीगरी अपने 45 आगमों की जो अभ्यास और स्वाध्याय का जो पूरा उनका बल है, पूरा जो उनका गायिकाओं का जो उनका अभ्यास है, उनको इस कलाकारी के पीछे लगाया है। सारी चीजें इसमें लगाई हुई है और इसके आगे भी मेरा मतलब मैं पूरा करूँगा कि भाई ये सारी योजनाएं हमने सारे प्रकल्प होते गुरुदेव के लिए हमारा सावध हो गए, ये हमारी खुशी हमारे फर्ज है। और आज नसीब से हमारे पास कार्यक्रम मौजूद है और अन्य कई संघों में कार्यक्रम मौजूद है जो अपने आप व्यक्तिगत समय निकाल के वहाँ जाते, अपनी राशि भी लगाते, संघ की राशि लगाते। कल का एक उदाहरण दे दूँ तो नागरदास रोड के ऊपर गुरुदेव का एक दिन का वहाँ पे चिंता है, सुनने जैसी बात है। नागरदास रोड अंधेरे से थोड़ा गुरुदेव के पास थोड़ा समय था, वहाँ पे गए, इतने छोटे संघ के अंदर 5-10 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि जमा हो गई, मतलब की जाहिर हो गई। तो ऐसे बड़े संघ इतने छोटे संघ ऐसे ला देते हैं और आगे भी उन्होंने वादा किया तो बराबर है कि हमारे संघ की तरफ से और कुछ राशि होगी तो हम जरूर देंगे। तो बस इसी प्रार्थना के साथ हम जो भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं उस गुरुदेव की देवियाँ हमने देखी है, उनकी कुछ 2-4 झांकियाँ भी देखी है, बाकी भी अभी आगे बाकी है। तो उन सबको शर्त लगा के जैसे 108 सभी बच्चों के भाव लोगों के जिन्होंने एक बनाई है, इनके लिए जो भी पुरस्कार करें मुंबई गई संगठन में इसके साथ जुड़ा हुआ तो उन्होंने इसका अभ्यास किया। मुंबई संगठन में कोई भी चीज को प्रमोट नहीं करता जब तक उसकी टेस्ट न कर ले, उसका सर्वे न कर ले, उसके लिए पूरा अभ्यास न कर ले। बात करके पूरा करता हूँ मैं। कल हमने फोन पर बात की किसी से, तो गुरुदेव मैं आपसे विनती चाहता हूँ कि हो सके तो आपकी जो प्रोजेक्ट की राशि है उनको भले 20% प्रोजेक्ट में 20 से 30% ज़्यादा होगा तो करूँगा, हो सकता है हमारे हाथ में। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट 40 लाख का है तो आप बताइए कि 60 लाख तक में हमारा पूरा हो जाएगा। कल हमने बात किया तो बहुत हुआ, यही कौन कोठी हमें इसने हमें बताया कि ये प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। मैंने तत्काल को फोन लगाया, फिर आप पहले खुलासा कर दीजिए जिस प्रोजेक्ट का आपने हमें पहले दिन से बताया उससे आगे मान कर 20 का डाला, लेकिन उसका मतलब नहीं कि 50 करोड़ का 100 करोड़ हो जाए। तत्काल इन्होंने गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास उसका खुलासा किया और बात बताई कि कोई बात नहीं, जैसे पिछले उसी हिसाब से चल रहा है, उसके अंदर कोई फर्क
इसलिए हमारा परिचय कम है, लेकिन आप भी इसके बारे में खुलासा करके इस बात को गिरावटी कीजिए। और एक चीज, हमारे शिव शासन के प्रखर ज्योतिषी, प्रखर खगोल शास्त्री और 50,000 साल का, पिछले 50,000 साल का कैलेंडर जिन्होंने तैयार किया है, ऐसे बिंदुबेन हमारे शास्त्री हैं जो आपके सर के विरोध नहीं रहते, ऐसे बिंदुबेन के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन ऐसी हड्डियाँ हमारे पास रिक्वेस्ट करता है, आप इस चीज़ का खुलासा करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल सही भाई, आपने अच्छी तरह हमको वार्तालाप किया और वो आश्वस्त भी किया। हमारा भी वहाँ जाना हुआ, जाने के बाद जब विजिट के बाद उतना बड़ा एस्टिमेशन सर्वे करने के बाद ही हम इस प्रोजेक्ट पे आगे कार्य करने के लिए विचार करें। मिलने वाला हम 11 लाख के ऊपर की कोई भी राशि बिगड़ विजिट किए समझे बिगड़ कोई कार्य करता नहीं, और इसी प्रणाली को आगे के मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमारा सतत सर्वे हर क्षेत्र पे बहुत जरूरी है। हम 3 दिन के बाद पोरबंदर विजिट पर है, मिलने वाला सबकी विजिट पोरबंदर है जो 108 स्थान पे आ रहा है। और आप जानते हो, मार्च महीने के पहले राशि का आवंटन करना एक धारा के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट उसको पूरा करने की एक कठोरता बनी रहती है। ये जो मंदिर बन रहा है वैसे इसकी झलक हमने तो बंदर देखी, आपने जिनको से ज्ञान से प्रश्नमंडल से और बहुत से लोगों से गाय करने में भी जरूर विजिट करेगी। वो मंदिर एक विशेष, उसकी विशेषता अनेकता में एकता, जैसे जैन धर्म को एक करने का प्रतीक बनेगा, ऐसी हमारी विचारधारा उस मंदिर में दिखती है। 84 गज, यहाँ एक गज से दूसरा गज मिलता नहीं। वर्तमान परिस्थिति बहुत विकट है, उस परिस्थिति के ऊपर की एक विचारधारा जो वहाँ पर 84 गज एक साथ इन देवियों में, 36 देवियों में, बराबर 36 देवियों में समावेश होने जा रहा है। एक विशेष कारण है, सभी धर्म और सभी जनसमाज उससे बड़े बनकर एक कार्य बनने जा रहा है। इसमें सभी यहाँ पर जो भी पधारे हैं उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि आपकी शक्ति से ज़्यादा ज़्यादा हम इसके कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य के ऊपर आगे की भूमिका के ऊपर भी हमने इस राष्ट्रमंडल को आश्वस्त किया है कि हमारी शक्ति मुताबिक हम तो समर्पित रहेंगे और हमारे साथ इस कार्य को गुरुदेव आपकी प्रतिष्ठा का बहुत जोरदार से रामचंद्र को वापस पहुंचाने के लिए आप यहाँ बताए बार मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे यहाँ मिश्रा जी के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और तो और यहाँ पर जो प्रश्नमंडल बना रहे हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा वो अपने मन की बात इस प्रोजेक्ट के बारे में दो सब जरूर। आज की मीटिंग के लिए भी कल उसमें एक प्रश्न था कि केंद्र की राशि जो नुकसान से लेती है, तो एक प्रश्न ये आया था कि इसके प्रेशर में नुकसान प्रभाव महात्मा विद्यार्थी जो मैं बोल रहा हूँ मेरी समझ में लोग पूछो में तो आप समझाना कि हर एक आचार्य गोविंद प्रतिमा का विराजमान करने का आपने बताया गया 4,25,000 रुपया से आदेश 118 का लिया गया है। यानी इसमें ये जो पैसे देंगे तो केंद्र की राशि की कोई शर्त नहीं होगी। ये सिर्फ मंदिर निर्माण में जाएंगे और पट निर्माण में जाएंगे, क्योंकि इसके चौके पैसे हमारे पास आ चुके हैं। कि जितना भी गुरु बेलियों का काम, गुरु मूर्तियों का काम, वो लगभग पंजाब से मैं जी जब से प्रोजेक्ट चालू किया है कि वो काम टोटली पूरा हो चुका है। अभी फक्त निर्माण, विद्यालय निर्माण, देवगढ़ संबंधित काम बाकी रहा है और उसी की राशि के लिए हम अपील कर रहे हैं। और क्या ये क्वेश्चन बात तो ये मिला धारण में चौपट हो जाए तो कोई
और तुमसे भी हमारा आया है कि ये प्रश्न हमने सभी ने पूछा था, खुला हुआ था, इसलिए बॉम्बे मिलते गए इसका समाधान सबसे करिए। बाकी जो अभी अभी बताया कि जो पट बन रहे 22 इंच के पत्थर भी 22 इंच के पत्थर के अंदर 8-9 इंच की भारी गई कोतरनी करके पट बनेंगे 21 फीट का जैसे सबके लोग दिन जाके वो अपनी दीवार के जैसे 21 फीट का पट बनेगा। और जैसे बताया उनका हुआ तो बाकी सब लोगों ने बताया जो जैसे ये जो अभी की फोटो है दैट इज एक्चुअली बिल्ट एज ये वो मॉडल नहीं और उधर कोतरनी का कार्य हमें सबको बहुत पसंद आया था। तो ये जैसे कि हमने एक पट्ट बनाना है जीरामला जी की दो कहानियाँ जीरामला जी की दो कहानियाँ। एक कहानी तो ऐसी है कि एक आचार्य श्री जी को भी सपना आया और एक शेठ जी को भी सपना आया कि उस गुफा में पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा और तुम लोग निकालो इस परमात्मा श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिमा के लिए क्यों सकता आप उसका कारण समझें। पार्श्वनाथ स्वामी जी के पहले गणधर भगवंत श्री सुभदत्त स्वामी जीरामला पार्श्वनाथ स्वामी जी की प्रतिष्ठा अंजन श्लाघा श्री सुभदत्त स्वामी जी ने की कहानी दिखलाते हैं कि किस तरीके से नागहस्ती यानी कि पादलिप्त सूरी जी के गुरु जी पादलिप्त सूरी जी यानी कि आकाश में उड़ करके हर रोज 48 मिनट से भी कुछ कम समय में 5 तीर्थों की पालीताना, शत्रुंजय, पालीताना, गिरनार, अष्टावक्र, मथुरा और एक और तीर्थ है उसकी यात्रा करने वाले पैदल नहीं आकाश में उड़ करके सोचिएगा किस तरीके की भी विभूति होंगे। नागहस्ती की कहानी यह है पादलिप्त सूरी जी की और नागहस्ती जी की कहानी। ऐसी हम वहां पर कहानियों का भी संयोजन कर रहे हैं। संपूर्ण दीजिए जो कुल का दीपक बने अपने श्रेष्ठ कर्म जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज है। हम बात कर रहे हैं नगरी के प्रमुख व्यापारी श्री सुन श्रेष्ठी और उनकी धर्मपत्नी श्री प्रतिमा देवी। घर में सुख सुविधाएं तो थी लेकिन माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कुल का दीपक बने अपने श्रेष्ठ कर्मों से पूरे वंश को प्रकाशित करे। लेकिन
जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज की। हम बात कर रहे हैं नगरी के प्रमुख व्यापारी श्री फुल श्रेष्ठी जी और उनकी धर्मपत्नी श्री प्रतिमा देवी जी। दोनों अत्यंत उदार, दयालु और धार्मिक थे। समाज में उनका बड़ा नाम है। लोग उन्हें बहुत चाहते हैं। धन दौलत की कोई कमी नहीं। श्रेष्ठी जी कई दुकानें थी और वे अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक गहरा सन्नाटा छुपा होता है। प्रतिमा देवी जी के जीवन में वही सन्नाटा घर में पुत्र और पुत्री का अभाव था और इसी कारण सेठानी जी का मन बहुत उदास और दुखी है। जरा एक पल के लिए उस माँ के दिल का हाल सोचो। घर में सुख सुविधाएं तो थी, लेकिन माँ कहकर पुकारने वाला कोई नहीं। स्रोतों में बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए सेठानी जी ने क्या कुछ नहीं किया। यंत्र, मंत्र, तंत्र, जादू टोना, यहाँ तक कि औषधियों का भी सहारा लिया। वे ज्योतिषियों को कभी अपने हाथ की रेखाएं दिखाती तो कभी ललाट की लकीरें बनवाती। उनके बताए अनुसार ग्रहों की शांति के लिए कई उपायों की, तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किए, तप किए, लेकिन परिणाम हर जगह से निष्फल। इतनी निराशा के बाद शायद कोई भी टूट जाता, शायद कोई भी उम्मीद का दामन छोड़ देता। लेकिन प्रतिमा देवी जी का व्यक्तित्व अलग था। उनके जीवन का एक ही सूत्र था जिसे वे अक्सर दोहराते थे। जब तक सांसा तब तक आशा, जब तक सांस है तब तक आस है। और यही अटूट विश्वास उन्हें एक नई दिशा में ले गया। उम्मीद की एक नई किरण तब दिखाई दी जब नगर के ही किसी व्यक्ति ने उन्हें एक विशेष सलाह दी। उस व्यक्ति ने उन्हें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी के शासन की अधिष्ठाता श्री वैरोग्य देवी माता जी की आराधना का सुझाव दिया। प्रतिमा देवी जी ने उस व्यक्ति से विधि विधान पूछा और बिना एक पल की देरी किए निश्चय कर लिया। कौशला नदी में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था जिसके मूल नायक का नाम श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी थे। उसी मंदिर में यक्षिणी के रूप में श्री वैरोग्य देवी माता जी की प्रतिमा भी प्रतिष्ठित, जिन्हें भक्तजन धरणीन्द्र टीला के नाम से भी जानते हैं। सेठानी जी ने कौशलशाला में यानी एकांत धर्म स्थान में 8 दिनों की कठोर तपस्या और आराधना का संकल्प लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सेठानी जी ने ये आराधना कैसे की, उनकी दिनचर्या क्या थी। तो सुनिए, उनकी भक्ति का तरीका बहुत ही अद्भुत था। वे प्रतिदिन तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी जी की नवामी अष्टप्रकारी पूजा करते थे, यानी वे परमात्मा की द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों करते थे। इसके बाद दोपहर में वे भगवती मातेश्वरी श्री वैरोग्य देवी जी की पूजा करते। स्त्रोत्रों में बताया गया है कि माता वैरोग्य देवी जी का स्वरूप बहुत दिव्य है। नाम जातीय देव, वाहन अजगर, चमकीली लंबी आंखें और 4 भुजाओं में शस्त्र। सेठानी जी देवी माँ की पूजा का फूल, केसर, कस्तूरी, इत्र, वस्त्र और नैवेद्य जैसे द्रव्यों और उत्तम द्रव्यों से करते। और रात में वे कौशलशाला में बैठकर माता जी का ध्यान करते, स्तोत्र और मंत्रों का जाप करते। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 7 दिन और 7 रातें गुजर गई। 8वां दिन भी बीत गया और फिर आई वो आखिरी रात। आधी रात का समय था। प्रतिमा देवी जी पूरी एकाग्रता से एक चित्त होकर धर्म जागरण और मंत्र जाप कर रही
श्रीमद नागहस्ती सुरेश्वर जी के धोए हुए चरणों का जल ग्रहण करना होगा। यहाँ देवी उन महान आचार्य श्री के बारे में सेठानी जी को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। देवी ने कहा कि आचार्य श्री नागहस्ती सुरेश्वर जी विद्याध्यक्षीय युग प्रधान आचार्य हैं। उन्होंने कठोर आराधना और साधना करके केलो सिंह जैसी अनेक लब्धियां प्राप्त की। वे उस महान परंपरा से हैं जिसमें शुद्ध सागर के गामी आचार्य भगवान श्री कालक सुरेश्वर जी महाराज हुए हैं और वर्तमान में उन्हीं की परंपरा में श्री नागहस्ती सुरेश्वर जी प्रमुख आचार्य हैं। यह कहकर आचार्य श्री की महिमा बताकर देवी अंतर्धान हो गए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण छूटी, प्रतिमा देवी बहुत प्रसन्न थी। उनका मन हल्का था। वे तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी और देवी माँ की पूजा करके मंदिर से निकले और सीधे साधु भगवानों के निवास स्थान की ओर चल गए। संयोग देखिए, जैसे ही वे वहां पहुंची, एक मुनि महाराज गुरुदेव के चरण होकर उस प्रासुक जल को पात्र में लेकर बाहर फेंकने यानी पलटने के लिए जा रहे हैं। हे नीरज, पात्री में क्या है? ये दो चरणों का रोग है, इसे पलटने जाना। हे नीरज, जल को पलटने क्यों? मुझे जरा सोचिए, एक नगर से खाली, क्या उसे वो जल मांगते हुए संकोच नहीं हुआ होगा? लेकिन नहीं, श्रद्धा में संकोच का कोई स्थान नहीं होता और बिना एक पल की देरी किए उन्होंने वह जल वहीं लिया। इसके बाद वे केलर से आदि अनेकानेक लब्धियों के कारण नैतिक प्रभावक पूज्य आचार्य श्री नागहस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहेब के दर्शन के लिए निकल गए। उस समय आचार्य श्री दशाश्वस्कर पावन का पाठ कर रहे। गुरुदेव ने सेठानी को धर्म लाभ दिया। आज अकेले कैसे आना? सेठानी जी ने अंत से लेकर इति तक यानी शुरू से अंत तक सारी माँ और देवी का आदेश बता दिया। तब एक महान युग प्रधान एवं निमित्तज्ञ प्रभाव आचार्य श्री नागहस्ती सुरेश्वर जी अपने शुद्ध ज्ञान का उपयोग लगाया। उन्होंने तत्काल दिख रहे नेत्रों को देखा और भविष्य के गर्भ में झांककर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर किसी भी माँ का कलेजा कांप जाए। हे बकरे, तुझे पुत्र तो प्राप्त होंगे, किंतु तुमने हमसे 10 हाथ दूर रहकर तो जन्म किया है, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र हमसे 10 योजन दूर रहकर ही वृद्धि को प्राप्त होगा। और फिर उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दी। तेरा बड़ा लड़का 10 वर्षों के बाद यदि यमुना नदी के इस ओर रहेगा तो वो जीवित न रहेगा। एक माँ के सामने धर्म संकट खड़ा है। वर्षों की मेहनतों के बाद बेटा मिलेगा, लेकिन अगर वह पास रहा तो उसकी जान को खतरा है। यमुना पार भेजने का मतलब था उसे घर से दूर करना। यहाँ प्रतिमा देवी जी ने जो निर्णय लिया वो उन्हें इतिहास की महानतम माताओं की श्रेणी में खड़ा करता है। उन्होंने अपनी ममता को मोह नहीं बनने दिया। उन्होंने तुरंत गुरुदेव से कहा, भगवान, अगर मेरा बेटा मेरे पास रहकर भी जीवित न रहे तो उसका क्या लाभ? मैं अपना ये पहला पुत्र आपको शिष्य के रूप में अर्पित करती हूँ। गुरुदेव जो स्वयं महान निमित्तज्ञ थे, उन्होंने सेठानी के इस त्याग को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, यदि तू ऐसा करेगी तो हमसे लंबे काल तक जीवित रहने वाला बनाएगा। गुरुदेव ने आगे भविष्यवाणी की कि इस पुत्र के अलावा उन्हें 9 और अत्यंत तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। गुरुदेव की यह अमृत वाणी सुनकर सेठानी जी ने अपने शिष्य नागहस्ती सूर्य जी गुरु जी, नागहस्ती सूर्य जी निमित्तज्ञ प्रभावक कहलाते हैं। जब वो आई
तब गुरु जी दशा सूक्त स्कंद का अध्ययन कर रहे थे, परावृत्ति कर रहे थे। दशा सूक्त स्कंद में 10 और 10 कदम दूर रह करके पानी पिया, तो 10 योजन दूर ही वह बड़ा होगा। यदि 10 योजन के अंदर अंदर रहा इधर तो मर जाएगा। तो वो कहती है कि यदि मर जाए तो मुझे उससे लाभ क्या? मैं पहला बेटा आपको अर्पित कर दे। तो गुरु जी कहते हैं यदि तू हमको अर्पित करती है जिन शासन के लिए, तो वो लंबे काल तक जीने वाला उसको हम बना लें। सोचिए कि एक प्रभावक आदमी, निमित्तज्ञ प्रभावक आदमी का एक वचन सपने में भी कहा गया हो ना, वो वचन भी झूठा नहीं होता। और वे स्वस्थ स्थिति में इस तरीके की बात करते हैं और सतरूप में उन्होंने किया। पादलिप्त सूर्य जी के नाम से ही पालिताना, पालिताना जो पीठ है, नागहस्ती जी के वरदान से पादलिप्त जी को पापों में लेप लगा करके खुलने की शक्ति प्राप्त हुई, इसीलिए वे पादलिप्त कहलाते थे। और पादलिप्त का एक गृहस्थ चेला था जो कि भारत का बहुत बड़ा तांत्रिक था, नागार्जुन। उसने इनसे पापों में लेप लगा करके खुलने की विद्या सीखी। उसने कृतज्ञता से पादलिप्त जी के नाम पर ही पालिताना नगर बसाया। ये एक दो प्रभावों की कहानी इस तरीके की है। ऐसी आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हम 108 ताकि वर्तमान काल में हमारी इच्छा है हम अपने जिन शासन का प्रचार करें, जिन धर्म का प्रचार करें। आपको जानकर के अच्छा लगेगा, मैं 3 यूनिवर्सिटियों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और तीनों यूनिवर्सिटियों में मैं विषय पढ़ा चुका हूँ। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, वहाँ पर मैंने जैन तत्व ज्ञान नवतत्व में से अजीब विषय लिया था। मुंबई में चातुर्मास करते हुए भाईकला में मैंने 12 अमृत विषय अपने संस्थान के माध्यम से MS यूनिवर्सिटी के माध्यम से परीक्षा दिलवाई। कच्छ यूनिवर्सिटी ने मुझको रोका भक्तामल के लिए, तो भी हमने वो काम भी किया। तो यानी कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, हम अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी चाहना है, अपने महापुरुषों का भी प्रचार प्रसार चाहता है। इस तरीके के बहुत सारे आयोजन जो कि अर्जी पत्रक में हमने नहीं लिखे, लिखना पसंद भी नहीं कर रहे हैं, परंतु आज की तारीख में हमको मंदिर जी के लिए, क्योंकि गुरु कुलिकाओं के लिए तो हमने पंजाब से हमको बहुत आसानी से मिल गया। एक ही शहर से हमको 21 करोड़ रुपया मिल गया, लुधियाना से भी। वहाँ पर लोगों के दिलों में गुरुओं के नाम पर आस्था है। और ये शासन प्रभावों की बात जब हम करते हैं, केवल मुझको 2 दिन में 21 करोड़ रुपया का वचन मुझको मिल गया, हमने वो खड़ा भी कर दिया। अब यदि हमको जरूरत है तो केवल देव देवता की जरूरत है। और आपको हम विश्वास दिला दें, हम वहाँ पर जिन शासन मंदिर, जिन मंदिर तो है ही, शासन प्रभावक महापुरुषों का तो मंदिर है ही, हम वहाँ जिन शासन के 4 अंग साधु साध्वी श्रावक श्राविका, साध्वियों का भी हम अलग से स्थान बनाने वाले हैं, श्रावक श्राविकाओं का एक स्थान बनाने वाले हैं। चारों का स्थान आपको वहाँ पर मिलेगा। गौशाला वैसे भी वहाँ चलती है, साधु आते हैं जाते हैं, वहाँ पर विश्राम भी करते हैं, वहाँ पर निवास भी करते हैं। इस तरीके का स्थल हमारे उत्तर भारत में ये पहला बनने जा रहा है, जिसमें कि जिन शासन प्रभावक 36 गुरुओं के पद अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। तो इस तरीके के कार्य में हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और धक्का मिलेगा तो हम उस पार चले जाएंगे, विश्वास है। और आप लोगों पर भी
अभी हमको पूरा भरोसा है, आप लोगों ने साथ दिया है, आगे भी आप लोग साथ देंगे। हाँ, हम रहे भिक्षुक का काम यही होता है कि भैया जरूरत है, भिक्षा दे ही, भिक्षा दो। बस ये जिन शासन के लिए, जिन शासन मंदिरों के लिए अवश्य में आप लोग जरूर सोच रहे हो। मैंने इस रीति से मीटिंग दूसरी बार देखी, पहली बार देखी तो वो घाटकोपर में देखी, तो भी इसी तरीके की बुलाई गई। यहाँ आया तो मुझको पता लगा कि भैया प्रवीण इत्यादि ने यहाँ पर भी बुलाई है, यहाँ पर भी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम सभी जगह तो जा नहीं सकते, परंतु सभी जगह बात पहुँचानी है और सभी जनों को हमें निमंत्रण भी देना है और उस मंदिर के साथ जुड़ने के लिए आह्वान भी करना है। इसके लिए आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जरूर आप अपनी, मैं तो कहता हूँ भक्ति को मत छुपाना, शक्ति छुपा भी लो चलेगा। शक्ति तो बहुत है, हमें उस शक्ति की भी उतनी जरूरत नहीं जितनी कि आपके दिल में इन शासन के प्रति भक्ति पैदा करनी है। हमारा उद्देश्य इन शासन के प्रति भक्ति जगाना है, इन शासन के लिए काम मिलजुल के करना है, यह हमारे दिल का भाव है। और आप लोग आए, हृदय से धन्यवाद। और इस कार्य में सहयोग देने का आप बनाए, अवश्य में भाव बनाए। हम वहाँ पर ऐसे कई आयोजन करने वाले हैं। लगभग पहले भी बताया, जैसे नितिन भाई ने, लगभग 2 एकड़ की एग्जिस्टिंग जमीन है, आगे भी और एक्वाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। एज ऑफ नाउ 2 एकड़ की जमीन है। और जैसे किसी ने को सवाल किया था, ये प्रोजेक्ट 45 से 50 करोड़ का एक्सपेक्टेड है आज की तारीख में। वो वापस रिकन्फर्म कर रहे हैं। किसी ने मार्केट में बोल दिया 150-200 करोड़, 100 बातें किसी को पकड़ तो नहीं सकते, पर जो फैक्ट है पहले दिन से 45 से 50 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये वही प्रोजेक्ट है। आप सबको ध्यान रहे। आगे तो सेकंड फेज में तो क्या बढ़ेगा उसको नहीं पता, पर प्रतिष्ठा तक और जो आयोजन तक ने ट्रस्ट मंडल में सूचित किए हैं, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट और अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 करोड़ है, जिसमें से 25 करोड़ रुपया ऑलरेडी हम जमा कर चुके हैं दानदाताओं से और भारत के विभिन्न संघों के साथ संस्था से। और मुंबई जैन संगठन, विलेपाला संघ, कुलनाथ के ट्रस्टी भी गए हैं, तो सभी का खूब साथ सका रहा है। और घाटकोपर वालों ने भी विश्वास कराया है, लालबाग के कुछ संघ भी जाने वाले हैं, उन्होंने गुरुदेव को अपना आश्वासन दिया हुआ है। और हमारे पीयूष भाई, प्रवीण भाई, माखीलाल जी खुद आके गए और एक कैप्टन की भूमिका लेके आगे इस काम को हमको बहुत साथ सहकार देते आ रहे हैं। जब पता चला गुरुदेव पास में है तो उन्होंने विनती की कि गुरुदेव हमारे साथ पदार्पण होना ही चाहिए। और गुरुदेव की सहज स्वीकारा और 3 दिन का प्रवास यहाँ पर रखा है। और साथ में इन्होंने ईस्ट तो इनका है, वेस्ट भी इनका है, वेस्ट ईस्ट दोनों भाइयों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस स्क्रिप्ट में सहायक इनकी आपस की ट्रस्ट मंडल की मीटिंगें चल रही है। और जरूर उसमें मुख्य योगदान देने की उन्होंने भावना गुरुदेव के साथ भी करनी है और जल्द इसका वो निर्णय भी देंगे। जो पधारे हुए सभी संघ से भी मैं निर्णय आपसे निवेदन करूँगा कि आपके शीर्षक में भी जरूर ये बात रखिएगा, ये प्रोजेक्ट रखिएगा। हमारे प्रवीण भाई को देख के आए संगठन, अगर आप भी देखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, जरूर आप संपर्क कीजिए, आपकी सभी व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। अब देख के आइए, फिर आपका जो मन बने तो इस 1.5 रुपये के योग में आप सबका योगदान दीजिए। इतनी मैं भावना, किसी से कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अगर आपके मन में विचार हो, आप गुरुदेव से हमसे ये ट्रस्टी पूरे भारत भर के ट्रस्टी हैं। इसमें 6 ट्रस्टी हमारे मुंबई से हैं, हमारे हर सिंह नदेशरा है, नरेश जी हैं, अंका, हमारे केवल जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष वीरेंद्र जी चंदालिया नालाई वाले हैं, हमारे धनसुख भाई चामुंडेरी वाले हैं। मैं हम 6 ट्रस्टी मुंबई से हैं और अम्बाला, गुजरात सब जगह से ट्रस्टी है। तो किसी को भी कोई भी अगर आपके मन में कोई भी हो शंका, समाधान, सब आप मुझे से पूछ सकते हैं। ये हमारे ट्रस्टी पीटू भाई महसाणा समुद्र स्वामी के अध्यक्ष है। इनकी विनती है कि आप गुजरात के बधाई तो गुजरात में महसाणा में
और जरा मैसेज करने को क्योंकि बाबा पूना में प्रतिष्ठा के लिए यहाँ बोल चुके हैं। पूरा देना पड़ेगा। हाँ, अभी आकर तो चलूँगा आपका पानी देना है। धन्यवाद। मैं अभी श्री चकाचक माता साहब जी से भी मिला जिनके साथ काम रहेंगे। विशेष करके इस मुद्दे पे जो अम्बाला तीर्थ है जिसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है, अभी विज्ञापन ने स्कीम के पूरा देखा है। इसके लिए मुझे समझना सुनील महाराज साहब का बहुत आग्रह रहा है कि आप सुनील महाराज संघ द्वारा जो विशेष कार्य ऐसे हमको प्रेरणा उनके द्वारा भी दी और अभी मुझे तो पता है उन्होंने तो अपने सामने जरा रखी है तो अपने संघ बना रहे हैं, सभी अपने अपने संघों में विचार करके जरूर इस क्षेत्रों को आगे की ओर अच्छी तरह व्यवस्थित 27 मार्च 11 मार्च 2027 को भव्य महोत्सव अंजन सभा का 32वां महोत्सव वहाँ पर है, बराबर। उसमें सकल संघों की आमंत्रण दिया जा रहा है। अपने को जरूर इसमें सहयोग देना चाहिए। किसी क्षेत्र से बताने सभी को विशेष में आप सभी बताने इसके लिए जिले वाला संघ आपको बहुत आह्वान कर रहा है। आप सबको यहाँ साधन की भक्ति का साथ में भोजन व्यवस्था अपन करेंगे और उसके बाद चर्चा विचारणा करके जो निर्णय आप लोगों को लेना हो तो आप उनको संबोधित कर सकते हैं। मुझे माना जो कुछ भी आगे के कार्यक्रम होगा वो सभी संघों को आगे प्रोग्राम से आमंत्रित करेंगे। किसी को और कुछ बोलना हो तो बहुत सहयोग साथ में है। हम लोग उद्योग का चतुर्मास पालिकाना में है, अम्बाला में जो विधायक है चिंतामणि पार्षद है, यहाँ पर भी चिंतामणि पार्षद है, तो बहुत सहयोग साथ में है और आपने बहुत उदाहरण रखा है। आपके प्रश्न में चर्चा विचार रखी है आप लोगों को। तो मैं हर एक भाई से विनती करूँगा दो शब्द बोलिए आप नाम जाना बोलो। एक ही समाचार मीटिंग में शामिल रहे हैं 2018 में करीब 200 थे आपने मुंबई संगठन का स्थापना किया में और ये कार्य संगठन के माध्यम द्वारा हो रहा है। आगे भी कार्यक्रम में संगठन पूरा मुंबई को संगठन की जवाबदारी છે નીતિનભાઈ કહું છું મુજે દ્વારા સ્થાપિત થયો તો તમારી જવાબદારી બહુ મોટી છે અને મોટી કરો અરે મને નથી ખબર કેપ્ટન જવા દો હવે કેપ્ટન વગર કામ થવું જોઈએ ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ કામ કોઈ બી રીતે ફીકું રહેવું ના જોઈએ બરાબર અમે સક્રિય રીતે સક્રિય થવું નવજીવનના ટ્રસ્ટી છે નીતિનભાઈ હવે કામ થઈ ગયું કામ થઈ ગયું 2019 ગોવાને બેંકમાં 2018 ગોવાને બેંકમાં પ્રિન્સિપલ હોલમાં 250 સંઘોનું સમૂહ અને એવા એ સંઘ મુંબઈ જૈન સંગઠનનું નામકરણ પૂજ્ય ગુરુદેવ બેસાજીજીના હાથે થયેલું લગભગ એ વખતે પણ લગભગ 250થી વધારે સાધુ સાધ્વીજી ભગવત 1000 ટ્રસ્ટી આવેલા 1000 ટ્રસ્ટીઓ ત્યાં બનાવેલા એ વચ્ચે અને એનો આપણે નીતિનભાઈનો જેટલું એમનું વાત કરું એટલી ઓછી જ્યારે ખબર પડી આ તો કે જે દિનશાસન માટે અવસર અમને મળ્યો અમે લોકો છૂટી ગયા ઇમિડિયેટલી એમને સંપર્ક સાધ્યો અંબાલા પણ જઈને આવ્યા અને મુંબઈના વિવિધ સંઘોને પણ જોડવાનું કામ ભગીરથ કામ નીતિનભાઈ અમારા જોડે ખંભોથી ખંભો મલાવીને કરી રહ્યા છે 72 વર્ષની ઉંમરમાં સાહેબે કીધું અમે 72 વર્ષની ઉંમર છે પણ વાતે જ સત્ય કાલે પણ અમે નવજીવન મળ્યા એટલા સક્રિય 1 મિનિટનો ટાઈમ નથી પણ જ્યારે જ્યારે અમે વાત કરી તમારા માટે ત્યાં પણ ફોન કરવો કયા પ્રશ્નમાં વાત કરવી આનંદજી કયાની પેઢી હોય તમારા ભાઈ જોડે મુલાકાત હોય બધામાં બધા નીતિનભાઈ આગેવાની અમારા સાથે દીધી છે તેમની પણ પૂરી પૂરી અનુમોદના કરું છું મુંબઈ સંઘ સંગઠન પણ અમારા સાથે છે આ બધા શિક્ષક પણ સાથ સહકાર સાથે જોડશે એ જ અપેક્ષા સાથે આ ઉપરાંત આપણે ગોતમ સ્વામી કલ્યાણ કેવલ જ્ઞાન દુનિયાથી એના સાથે બી વિજયપાલ સ્વામી સારી રીતે સંકળાયેલો છે એની બી મિટિંગ ગત 15 તારીખે અહીંયા મુંબઈના સમૂહને બોલાવીને વાતચીત કરી પૂરા ક્ષેત્ર સમજાવ્યું ગૌતમ સ્વામીજી વિશે પહેલું કલ્યાણ ત્યાં ગૌતમ સ્વામી સભાનું મંદિર બની રહ્યું છે
એમાં મુંબઈના ઘણા લોકો લાભ લઈ રહ્યા છે અને એ 300 કરોડનું પ્રોજેક્ટ સેવા કરતી છે એમાં કોઈ શંકા નથી. દેરાસર બનવાનું લગભગ 120 કરોડ રૂપિયાનો દેરાસર અને ફિલ્મ સુધી આવી ગઈ. સારા એવા પૈસા એકઠી થયા. ભોજનશાળા વગેરે વ્યવસ્થા એની પ્રતિષ્ઠામાં બધા સંગ્રહ બધા ખર્ચ બધા સાથે ઓપન 2029માં કરવાની પ્રાય આખા કમિટીની વિચારધારા પ્રમાણે સમય મર્યાદા 2029માં પ્રતિષ્ઠાનો પસંદ છે. એટલે દરેક દરેક વિચારની હવે એક વર્ષમાં જેમ પ્રોગ્રામ થાય ત્યારે આગળનો પ્રોગ્રામ બાબતમાં એમને વાકેફ કરવા બહુ જરૂરી છે. એમનું જે બધાનું ચાતુર્માસ બધા કચ્છના બધા મહાત્માઓ આપણા બધા સમુદાય એ બધા ઈશ્વરજીની આજુબાજુના ક્ષેત્રોમાં ચાતુર્માસ કરે તો ત્યાં પહોંચી શકાય. એમ બહુ લાંબો જ છે. એટલે આગળની રૂપરેખા એ પ્રમાણે કરવી પડશે. હવે આ અંબાલા તીર્થની પ્રતિષ્ઠા આવી છે તો મારો વિચાર છે સર્કલ વિચાર છે વિચાર બીકાનેરમાં ચાતુર્માસ કરવાની ત્યારે એવી રીતે આગળ થાય છે ખબર નથી પણ અનુકૂળતા જે હશે એમાં જે અનુકૂળતામાં સારા વસ્તુ હશે એમાં બધા ઘણા માર્ગો બધા આચાર્ય ભેગા થાય અને આ સારામાં સારી જો જાજરમાન પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ થાય અંબાલામાં એવું બધા આપણે બધા છીએ. આપણે બધા વધાર્યા 2027માં અંબાલાની પ્રતિષ્ઠા થાય અને પ્રાય 2019ની શરૂઆતમાં ત્યાં અભિયાનની પ્રતિષ્ઠા થતા. તો સાહેબજી आपको 27 के हमारे पास दुनिया जी में उन सब के प्रबंधन जो टीका होगी ये भी संभव है. तो आप यहाँ से जाए ठीक है, हम जरूर विचारेंगे. अधिक हो जाएगा उसी तरह हम तो जाकर के भी आए, देख करके आए, हम देख करके आए उस स्थान को और उस स्थान की एक खासियत तुमको मैं बताना चाहता हूँ. गुड़िया जी स्थान की एक खासियत जो कि शायद समाज में कम प्रचलित है, शायद कोई जानता भी नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ जाकर के देखा सबसे ज़्यादा हरे पत्थर का उपयोग गुड़िया जी में है. गुड़िया जी में हरे पत्थर का उपयोग है अधिकतर. मैंने वहां के पुजारी से पूछा यार हम तो हरे पत्थर के कारण से मारे गए. लोगों ने कहा मकबरा है, जबकि मकबरा हम अंबाला में कुछ है ही नहीं. हरे पत्थर के कारण से लोगों ने उसको मकबरा बना दिया. यहाँ तो पूरे का पूरा इधर देखो उधर हरा पत्थर, तो ये क्यों? मैंने उससे पूछा तो उसने कहा महाराज इसका रहस्य, मेरे पिताजी भी इसी मंदिर के पुजारी थे, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा गौतम स्वामी जी का सबसे बड़ा काम वातना देना, जो काम उपाध्याय करता है, और उपाध्याय जी का रंग हरा. इस कारण से गुड़िया जी में चारों तरफ लगभग हरे रंग का उपयोग पत्थर के साथ में किया गया. तो यानी कि एक इस तरीके की संस्कृति जो कि उपाध्याय का हरा रंग और हरे रंग के पत्थर, गौतम स्वामी जी का मुख्य काम अध्यापन. इस कारण से संस्कृति का कितना ध्यान रखा जाता था, ये मैंने वहाँ के पुजारी से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे तो पूछना पड़ा, क्योंकि हम हरे पत्थर के कारण से गुरु प्रतिमा की अपेक्षा गुरु चरणों का महत्व बहुत अच्छी भूमि है और हम जरूर हम न पाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. और अभी किसी को पूछना, किसी को प्रश्न है कुछ किसी को, तो उसका खुलासा हम कर सकते हैं. इसकी जानकारी ये जब प्रश्न में आए हुए हैं. ठीक है, अभी सभी का आभार. साथ में बच्ची को साथ में कोशिश करेंगे हरी पूजा करके आकर काम करने गुरुवंदन પાણી પીને બી આવે છે.